Hello students, welcome to our next video lecture. So in this video lecture we are going to discuss about female reproductive system, right? Before this I have already discussed the male reproductive system as well as spermatogenesis. I hope all those topics are clear to you. So moving on to the female reproductive system, there's a basic structure which you have already studied in your class 10th, that about these diagrams. You have already practiced these diagrams and these topics in your class 10, right? So moving on to the topic, the female reproductive system, it comprises of basic structures. These are a pair of ovaries, a pair of oviduct. Here you can see this, right? These are round oval shaped like structure are ovaries, and oviduct, this is the oviduct through which ovum transfers from one place to another place, right? From these ovaries to uterus. Then there is uterus. This portion is known as uterus, uterine cavity, right? Then there is cervix. This portion is outermost covering is known as cervix. Then it is vagina, and sixth and the last one is external genitalia. External genitalia is the outermost external portion which is visible in the female reproductive system. This particular diagram which has been shown in this slide has been taken from your NCERT book only. So go through this diagram, practice it carefully with the labeling itself, such as isthmus, ampulla, infundibulum. These both all the three labelings comprises of fallopian tube. ये fallopian tube है आपकी, तो ये तीनों labeling जो है वो fallopian tube के अंदर आती हैं. Then there are fimbriae which provide movement. Then ovary is there in which reproduction, that is the growth of ovum or ova or egg is taking place, right? Then there is cervix, cervical canal, and the outermost opening is vagina. Then endometrium, these are the linings of the cervix. Internal lining or the from inside portion, the most internal lining is known as endometrium. Then middle one is known as myometrium. Then the most outermost covering of the cervix is known as perimetrium. Okay, this is the diagrammatic sectional view of female reproductive system. Okay, so moving on to the next slide. In this we are going to discuss about the female gonads, which are ovaries. In male gonads there were testes. You people know this, right? टेस्टिस के बारे में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे उतना नहीं डिस्कस करेंगे. Here ovaries are the primary female sex organs that produce female gamete called as ovum. It also produces several female steroid hormone. ठीक है, तो ओवरी का जो फंक्शन होता है, पहली चीज़ है कि वो ओवम का प्रोडक्शन करेगा. सेकेंडरी, वो जितने भी फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जो फीमेल हार्मोन्स जनरली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होते हैं, उनका प्रोडक्शन करने का भी काम किसका है? ओवरीज का. तो ओवरी प्ले मेजर रोल इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट. देन देयर इज नेक्स्ट पॉइंट, ओवरीज आर लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन. एब्डोमेन आपका जो स्टमक वाला एरिया होता है, जो आपका नाप होता है उससे नीचे, स्टमक का जो एरिया है उससे भी नीचे जो लोअर एब्डोमेन का पोर्शन होगा, वहाँ पे ओवरीज की लोकेशन होती है. ओवरीज आपको पता है, देयर आर 2 ओवरीज, दे आर 2 इन नंबर. तो दोनों साइड में, जैसे किडनी की लोकेशन थोड़ा सा ऊपर होती है, लंग्स की लोकेशन बाइफर्केटेड 2 के नंबर में है, उसी तरीके से ओवरी की लोअर एब्डोमेन में लोकेशन होती है. ये आपने पिछली वीडियो में अच्छे से देखा हुआ है. ये ओवरीज की लोकेशन है. तो ये अगर स्टमक का पोर्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ओवरीज लोकेटेड होती हैं. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज अवर थर्ड पॉइंट. ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 centimeter in length. You can have this particular idea about using your scale, that what does it mean for 2 or 4 centimeter in length, right? तो ओवरी का जो साइज़ होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर ही लेंथ में होता है. मतलब कि अगर ये ओवरी है,
ठीक है, ये पर्टिकुलर ओवरी है, तो ये रेंज करेगी आपकी 2 से लेके 4 सेंटीमीटर के लेंथ में। These are connected to the pelvic wall and the uterus by ligament। और यहाँ से ये आपका पेल्विक लेंथ, पेल्विक वॉल जो आपके साइड वॉल होती है, ठीक है, वहाँ पे, और ये लिगामेंट है जो लीड करते हैं यूटरस में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ईच ओवरी इज कवर्ड विथ थिन एपिथेलियम। जितनी भी ओवरी है वो एक आउटर कवरिंग से कवर्ड होगी। ऑब्वियसली जितने भी आपके टिश्यूज़ होते हैं या जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो स्किन कवरिंग से कवर्ड होते हैं। तो ईच ओवरी इज़ कवर्ड, दिस ओवरी इज़ कवर्ड थ्रू thin like epithelium. Within this covering small sac like structure known as ovarian follicles। ये जो हैं आपके ये ovarian follicles हैं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में अभी डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम इसका आगे नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में, कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर इसका होता कैसा है, एग्जैक्टली ये दिखता कैसा है। द ओवेरियन स्ट्रोमा और द फॉलिकल हैज़ 2 जोन्स। ओके, तो यहाँ पे जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है इसमें क्या होता है, 2 जोन्स होते हैं जनरली। फॉलिकल हैज़ 2 जोन्स, पहला होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड दूसरा होता है इनर मेडुला। ये बेसिक सा आपका ओवेरियन फॉलिकल्स का 2 जोन में इसको बांटा गया है। ये है क्या, कैसा दिखता है ये स्ट्रक्चर, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस particular slide is about oviduct। Okay, so talking about oviduct, each fallopian tube is 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे अब तक हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे वो था आपका ओवरी। ओविडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो पूरी ओविडक्ट कहलाती है। तो ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओवरी का साइज़ कितना था, 2 to 4 सेंटीमीटर्स। ओवरी का साइज़ हटा के जितना भी पैसेज जो आपको दिख रहा है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब यूटरिन का, वो आपका होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग का। जितनी बड़ी आपकी 15 सेंटीमीटर की आपकी स्केल होती है, तो अगर आप 2 से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की रेंज ओवरी की रख लें तो वही पूरा एक मेजरमेंट आपका फेलोपियन ट्यूब से लेके ओवरी तक आता है, राइट। Close to the ovary, the oviduct has a funnel shaped like structure। ये funnel shaped like structure जिसके थ्रू ओवरी से ओव्यूल एंटर करता है ओविडक्ट में, ठीक है, इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ऐसे याद करेंगे, INFUNDI, फंडिबुलम BULUM, ठीक है। तो ये होता है जो आपका पॉइंट है, जिस पॉइंट से जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है जिससे ओवरी से ओवम ट्रांसफ़र होता है फेलोपियन ट्यूब में, ये वो स्ट्रक्चर होता है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एज एम्पुला। तो ये आपका फर्दर लीड करता है एम्पुला में। एम्पुला जो है वो आपका आउटरमोस्ट जो आप फेलोपियन ट्यूब का रिमेनिंग स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम के बाद वाला होगा वो एम्पुला कहलाएगा। एम्पुला के बाद इस्थेमस आता है, देन इंट्राम्यूरल जो आपका ऑर्गन होता है वो आता है। द एजेस ऑफ इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के एजेस जो होते हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये वहाँ पे इसीलिए होते हैं जिस तरह आपको आपके हैंड्स जो हैं, आपके हैंड्स हैं या लेग्स हैं, वो उसमें जो फिंगर लाइक फिंगर लाइक नहीं, एग्जैक्टली दे आर फिंगर्स, दीज फिंगर्स आर प्रेजेंट टू होल्ड एनीथिंग टाइटली। सपोज दैट आपको एक बॉल कैच करनी है, तो बॉल अगर सामने से कोई आपके सामने थ्रो करेगा, तो अगर आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है आपके हैंड्स में, ये फिंगर्स नहीं प्रेजेंट है, यू वोंट बी एबल टू होल्ड दैट बॉल कम्प्लीटली इन योर हैंड, ठीक है, वो आपके हाथ पे आएगा ही नहीं क्योंकि एक ग्रिप प्रोवाइड करेगा वो। तो यहाँ पे जो इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, फिम्ब्रियर, ठीक है, दीज हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, द रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के टाइम पे जब ओवम मतलब कि एग रिलीज हो गया है तो फिम्ब्रियर, वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, दे आर रेडी टू टेक or to grasp that particular ovum and provide that particular ovum a passage towards the fallopian tube, right? I hope the things are clear to you.
Then the last point is the last part of the oviduct is called isthmus, which is joined to the uterus.